हेलो गाइस, वेलकम टू मेहमान नवाजी सीजन 4। एक नया एपिसोड, नया आशियाना। तो किसका है ये आशियाना? मलिक। वेल यस गाइस, आज के हमारे जो होस्ट हैं वो है अबू मलिक जी, जो हाल ही में बिग बॉस 13 के घर में भी जा चुके हैं। जानते हैं उनका बिग बॉस 13 का पूरा एक्सपीरियंस और ढेर सारी बातें करेंगे उनके साथ। आइए। Hi Neha, how are you? Very good, how are you? Welcome to my house. थैंक यू सो Yeah, मच। so nice of you to come. मेहमान नवाजी यस, अब आप मेरे घर में देखेंगे हैं? बिल्कुल, कांट वेट। चलो let's enjoy. या Thank you so much. Wow, Abuji, what a beautiful house you have. You like it, huh? Yeah, I love it. I mean, इतना रॉयल फील आ रहा है एंटर करते ही। I love all this. You know, the structure of the whole place was designed by basically my mind because I wanted to have a wooden floor, and I looked for the furniture at places where I wanted to get it from. तो जाके मैं लेके आया वो एक चीज़ and एक assemble कर लिया एक area where we could all watch our televisions and things like that, or like a common, this is like my drawing room, and everybody sits here in the evenings, and whoever my children come in and you know जो भी बातें चीतें करनी हो वो यहाँ होती हैं. This of course is the main area जहाँ हम डाइनिंग वाइनिंग करते हैं, खाते हैं, and that is all. It's fun. ये कॉर्नर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, गुजराती फर्नीचर, you know. It's got a lot of charm and Rajasthani, Gujarati, this kind of look. So I saw it somewhere and I picked it up और मैं लाके रख दिया. So it looks nice. Yeah. And then of course this harmonium is there. So कभी हारमोनियम बजा के रियाज करना हो, गाना हो, so we do it here on the, it matches the whole thing. वाओ, आई मीन बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। आई एम श्योर आपने हर जगह से कुछ न कुछ पिक किया होगा, बहुत सारी मेमोरीज होंगी हर एक चीज से जुड़ी वो हुई। तो घर में स्प्रेड आउट है और ऑफिसेज में स्प्रेड आउट है, बिकॉज एक जगह नहीं रख सकते. मैंने प्रैक्टिकली राउंड द ग्लोब कुछ 50-100 चक्कर मारे होंगे. तो मैं सिटीज जाता था शोज करने, तो हर जगह से कुछ ना कुछ ले ही आता था. तो ऑल दोस थिंग्स आर देयर एवरीवेयर. यू लाइक दिस, ये हाउसेज हैं, ये प्लेन में मिलते हैं हॉलैंड के, ये हम दिखाएंगे. We can show to the camera. These are the house, those houses. They all have wine inside. इसके अंदर वाइन भरी हुई है. So they are the actual houses of Holland. But वो अंदर देते हैं हमें as a gift. When you get into the plane in the first class and the business class, they give you as a gift. तो इतने trips मारे हैं कि मेरे पास ऐसे 50-60 KLM के houses हैं. और एक इंटरेस्टिंग चीज ये जो लिविंग एरिया में है वो है आपकी ये जो लाइटिंग और फैन. ये लाइटिंग में as you know that the main area for good lights is in Delhi. तो मैं गया था वहाँ खान मार्केट, तो वहाँ देखी थी मैंने. बस ये लॉन्ग थे, यहाँ तक थे, they were long. तो उसको मैंने कट करवा के इसका दीवार बनाई so that I could. पहले तो मैं देख के डर गया when they landed कि फिट कैसे होंगे, but when they fitted they looked very nice. हाँ, so it looked very nice. So I used them. अभी इतने सालों से चल रहे हैं. The fans also were bought like that. So it was a well lighted. I like the place lighted up. Right, and it's white and gold. The theme is white and gold. सोफा भी you know काफी very comfortable. So well इस ये जो amazing सा living area है, इसमें आपका favorite corner? Well, I get up and go that side. There is where I'm sitting, in that area, and that is where I watch the news in the morning, read a paper, have a cup of tea, and then as it is get through the day, and then immediately leave for the office. The other areas that is there is the recording rooms in the house, which we'll discuss later as we go. When the drawing room, that is my favorite area on the right hand side, where I sit and have a cup of tea, which I generally sometimes muscle it up myself, or the servant gives it to me. अच्छा, तो फिर आगे जाते हैं. आई मीन इतने अमेजिंग से लिविंग एरिया देखने के बाद आई एम सो एक्साइटेड टू सी योर बेडरूम और वहाँ कितना डेकोरेशन किया. Yeah, why not? Why not? या प्लीज. There, why not?
जा रहे हैं हमारे बेडरूम के एरिया में एंड आई वांट टू सी वेयर आई स्लीप कम. Wow, so peaceful here. Yeah, it's a place where we come down and chill out, relax when we have finished our day's work and we go to sleep. मेरा तो बहुत लेट हो जाता है क्योंकि मैं उस म्यूजिक रूम में बहुत देर तक होता हूँ 2-3 बजे तक. अच्छा, ये बहुत ही प्यारा कमरा है. इसका इंटीरियर भी योर वाइफ डिड इट, और आपके इनपुट्स क्या रहे हैं? मेरे इनपुट बेसिकली ये होता है कि व्हाट आई वांट ऑन द फ्लोरिंग, व्हाट आई वांट ऑन द सीलिंग एंड हाउ आई वांट टू बी कोलैबोरेट एंड डिस्कस कि किस तरह से रूम होना चाहिए. वी वांटेड अ 4-poster बेड, तो इस तरह से टू बी अ ह्यूज एरिया टू बी इन, अ टीवी शुड बी देयर, वी कैन वॉच आवर फेवरेट शोज एंड व्हाटएवर इट इज. तो इस तरह का डिजाइनिंग होता है, बट द बेसिक आइडिया ऑफ द कलर कॉम्बिनेशन दैट आई हैव इज इन माय हेड कि इस तरह से होना चाहिए. So this would work from here till the dressing area, which is on the further end. So this room extends to about 1,200 square feet, where it goes into a dressing area and the toilets on the other end. Oh, okay. अच्छा, अपने घर को कितना मिस किया बिग बॉस के घर में? मैं तो बिग बॉस के वहाँ जो बेड्स थे वहाँ तो सोया ही नहीं. मैं तो बाहर सोफे पे जाके सोता था क्योंकि उन्होंने वो जो बना दिया था कंपेनियन का थी, तो आई डिडंट एग्री टू इट. तो मैं तो सीधा बाहर जाके सो गया था, तो बाहर ही सोता था. तो नेचुरली द कंफर्ट ऑफ योर ओन हाउस इज नॉट कवर देयर, तो इट्स अ प्रेशर कुकर. आई थिंक रूम में आपके एक मेहमान भी आ गए हैं, इनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम? ये हमारे चंगेज खान है. चंगेज खान अभी पानी पीने जाना चाहते हैं. अच्छा, ये नाम बड़ा ही अनोखा है. ये चाइनीज ब्रीड है. दे आर बेसिकली टेम्पल वॉच डॉग्स. दे आर बेसिकली बहुत वायलेंट होते हैं, मगर इसको अगर हम जिस तरह से हमने इसको, छोटा सा बच्चा था व्हेन ही केम एंड वी मेड हिम वेरी वेरी सोशल एंड लाइक दैट, बट अपने लोगों को बहुत गार्ड करता है. एक साउंड उसको पता चल जाता है कि कब आ गया डैडी. ही नोज कि ही इज कम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, ये उसका पानी का टाइम हो गया. इट शुड गो टू हिज वाटर एरिया तो वी कैन कंडक्ट. तो घर से अच्छी कोई जगह नहीं है. वो ना मेरे लिए, आपके लिए, हमारे सब क्रू मेंबर्स के लिए घर से प्यारी कोई जगह नहीं होती. सबसे ज़्यादा आराम आपको घर पे मिलता है. और बिग बॉस का हाउस तो प्रेशर कुकर था. वेरी मच. बट इट वाज एन एक्सपीरियंस. ओह वंडरफुल. व्हाट एन एक्सपीरियंस. नो टेलीविजन, नो टेलीफोन, नो कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, नथिंग, नो न्यूज़पेपर्स, नो पॉलिटिक्स, नो, बट एवरीथिंग इनसाइड. इनसाइड पॉलिटिक्स, इनसाइड जेलसीज, इनसाइड हेट्रेड्स, इनसाइड वो क्रिएट हो जाती थी अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन with cameras. Wish you could have, been there for more Yeah, I also feel that. 2-3 हफ्ते और हो जाता, चलता है. क्या पता आ जाऊं 1-2 हफ्ते के लिए. Just don't know. With Big Boss, what is going to turn, whom they want next, you don't know. Correct. चलिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपका स्टूडियो रूम बड़ा इंटरेस्टिंग. Oh yes, that is my main work area. वहाँ बैठ के हमने गाने बनाता हूँ, म्यूजिक करता हूँ, शोज का स्ट्रक्चरिंग करता हूँ. So that is a very important area. चलिए आपको मैं अपना म्यूजिक रूम दिखाता हूँ. चलिए. Here we are. Oh, wow. So come to my recording area. Your studio. Yeah, Wow. it's got all my stuff inside. ये आपका म्यूजिक स्टूडियो. Yeah, this is the mad place where we make our music and things like that. I have this thing that gives me the scales. This is the computer on which the Logic Pro works, and the songs are made. This is my keyboard which I sync in the music. These are my guitars when I need to play. तो जब मैं बजाता हूँ तो they come here. तो all these things are here. यहाँ चाय कॉफ़ी सब चलती है. We drink and we are here. रात के लेट नाइट तक काम करते हैं. अच्छा. मतलब ये बेसिकली काम शुरू हो जाता है somewhere around 6-7 o'clock और फिर रात के 2-3 बजे तक I'm there. Sometimes I flop here only. यहाँ जाके रोक के सो जाता हूँ. And then I get up in the morning again start working. And then I leave for the office also. That is also priority. तो 11 बजे ऑफिस चले जाता हूँ. So this is the place. अच्छा, इस रूम में अबू जी ये ऑफ कोर्स ये आपका सेटअप तो बहुत अमेजिंग सा है ही. एक और चीज मुझे दिख रही है, आपके कैप कलेक्शन जो है. या मैं बेसिकली स्टेज का आदमी हूँ. मैं जिंदगी में स्टेज पे रहा.
from the age of 15 I have been on stage and when I wanted to wear the shiny caps, अभी तो खैर बहुत लोग पहन रहे हैं मगर उस टाइम पे कोई नहीं पहनता था, तो I used to wear the shiny caps and shiny clothes and bright shoes and what not. मैं अभी तक वही पहनता हूँ, तो that fun element was there. तो उस प्रोसेस में मेरे फ्रेंड्स आते थे अब्रॉड से, उनको पता था इसको कलेक्शन चाहिए, तो बाहर से मेरा एक फ्रेंड है सफदर हुसैन, वो बहुत सारी कैप्स लाता था अलग अलग, ही न्यू अबू वांट्स देम एंड लाइक दैट मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ कैप्स है which I have kept inside. And then those bright shoes which I wear from Dr. Martens, वो Dr. Martens लंदन से मिलते हैं, they are basically stage shoes. वो एसिड में इसमें कुछ में भी ना ये इन जूतों को कुछ नहीं होता. If you put them in acid, nothing will happen to these shoes. Because these shoes are basically meant for anti-electricity, acid, kerosene, whatever it is. मतलब कुछ नहीं होगा आपको while you are performing. Stage is a performing unit where a lot of gear is there. तो आपको पता नहीं क्या हो सकता है वहाँ. Because lot of power goes in, electricity, special effects, fire, method, बहुत चीज़ें होती है. That's how a stage show is done. So you have to be well geared. So this is a well geared stuff. तो इस रूम में basically आप देखें तो I'm very fond of movies. तो मैं जब टाइम होता था I sit and watch movies on this place. यहाँ बैठ के फिर पिक्चरें देखता हूँ. But that's my idea of relaxing, watching movies. तो मैं जितनी भी पिक्चर रिलीज होती है सब देखता हूँ. तो I enjoy it. अच्छा, इतनी सारी कैप्स है, आपने कहा you love all your caps, पर इसमें से still if you have to choose one, वो कौन सी होगी? One which I would like to choose, I like this one since it's Christmas time. This is one cap. You can wear it. This is what you like? Yeah, I like this cap. Yeah. This is another cap. Wow. So this is the caps I like. And this is how it is. Stage पे चले जाओ, cap पहन लो, दे दे रहा You already look like a rock star. But I'm not much of a star. But I'm a good musician. I know my music. So I hope things work out because I want to sing on stages. मैं इससे पहले जितने shows करता था मेरे basically actors based show होते थे. मैं सलमान खान को, शाहरुख, everybody I've taken all over the world. उनके साथ shows किए तो मेरा show का premise was entirely different. Taking actors and then performing with them. So I never wanted to be but the actors became too expensive to go on stage. Then we started performing and doing things because music हमारी family में था. Now I want to be just entirely on my own to be on stage. Okay, so बहुत मजा आया अबू जी. आपका लिविंग एरिया देखा, आपका बेडरूम देखा, इतना प्यारा म्यूजिक स्टूडियो देखा, आपका इस सारे कैप कलेक्शन देखे. So now I can't wait for the last portion of this show, which is मेहमान नवाजी, जहां आप हमारी मेहमान नवाजी करेंगे. Why not? किचन में जाएंगे, आप जो बोलेंगी फटाफट बना के आप सबको पेश कर दूंगा. And we'll sit and have a bite. And then we'll go and ahead, I can bid you goodbye and you'll really enjoy my mehman nawazi. I'm sure. चलिए. क्या बनने वाला है आज किचन में? भाई नेहा जी, मैंने आपके लिए बहुत कुछ बनाया है. एक तो मैं बता दूं, मैं अच्छा कुक हूं, मैं बना लेता हूँ चीजें. तो पहले मैंने छोले बनाए हैं थोड़े से, फिर मैं कुलचे आपको खिलाऊंगा, छोले और कुलचे के साथ. दैट आई विल मेक इन फ्रंट ऑफ यू. कुलचे अभी छोले क्या है, बॉयल कर लो. बड़े बड़े टेक्निक बताते हैं, मैं बता रहा हूँ सिंपल. बॉयल करो छोले, पहले रात को भिगो दो, बॉयल करो, जब उबल जाए एक हांडी लो, थोड़ा मसाला डालो, छोले का मसाला डालो, फेंको छोले अंदर, घुमा लो और छोले तैयार. देखिए आप वो लेके आइए छोले का डोंगा, आपको बताता हूँ मैं. देखिए ये छोले मैंने बनाए हैं और ये मैं चम्मच से दिखाता हूँ, ये आप खुद टेस्ट कर लीजिए, बताइए कैसा है. अच्छे है ना? चलो ये तो अब इनके साथ जब कुलचे बनेंगे तो ये कुलचे कैसे बनेंगे. ये मैंने कुलचे लिए ऐसे और ये मैंने फ्राइंग पैन पे रखा, ये फ्राइंग पैन पे रख दिया. अब मैं इसके अंदर इसको मैं फ्राई करूंगा. एंड आप एकदम प्रो लग रहे हैं, while you're doing all this. Yeah, I don't get वो जो होता है ना कि it is going to be difficult to do it. It's not difficult for me. ये मैंने आपके ये कुलचे आपके फ्राई कर दिए. अब मैंने बिग बॉस के घर में एक
ऑमलेट बनाया था जो सब कहते थे कमाल का ऑमलेट बनाया है। अगर आप चाहें तो मैं ऑमलेट आपको 1 मिनट में बना के देखूँ। ये ले ली मैंने 2 अंडे, ये मैंने यहाँ रखे, ये खोला इसको, ये डाला, दूसरा लिया। ये मैं क्विक बना रहा हूँ सो दैट यू डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस। ये मैंने प्याज डाल दिए, ये मैंने धनिया डाल दिया, ये मैंने हरी मिर्च डाल दी, ठीक है। नमक के लिए मैंने नमक ले लिया, ये देखिए नमक, ये 2 अंडे तो 2 चुटकी नमक हो गया, ये हो गया नमक हो गया, दैट्स इट। And here we are. So now you realize कि food is not very difficult to cook. तो आदमी लोग भी, आप लोग भी सीख लो कि खाना बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अपनी औरतों को इतना मत सताओ, खुद जाओ अपने किचन में, फटाफट असेंबल करो और खाना तैयार हो जाता है। एंड ये दिस इज आवर another feast that we are going to have is omelette with some kulchas, some cholas, some cakes and some tea. I forgot कि मैंने इससे पहले चाय भी चढ़ाई थी आपके लिए। तो चाय मैंने चढ़ाई है आपके लिए, ये वहाँ रख दीजिए। चाय चढ़ाई थी, ये चाय मैं निकाल के आपके थर्मस में डाल देता हूँ so that you have your tea. Now the main thing in this whole adventure is this कि ये मैंने बना दिए अपने हाथों से आपके सामने, तो आप नहीं बोल सकते कि मैं नहीं बना सकता। हाँ, सो हियर इट इज़, वी हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड दिस इज इट। ये कुक हो रहा है। ये देखो फ्लिप हो गया हमारा ऑमलेट। हाँ, एंड वी हैव एन ऑमलेट रेडी। सो देयर इट इज, वी हैव द ऑमलेट, वी हैव द कुलचाज, we have the tea. If you will take the tea, चलिए, I will get the other things. तो let's go and serve. आप चाय लीजिए और मैं ऑमलेट और ये कुलचे लेके आता हूँ। तो यार these are things मैंने प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। कुछ बाहर से आई हैं, कुछ हमने आपके सामने बनाए हैं। सबसे पहले जो मैं बात करते रहता हूँ, छोले छोले छोले, तो ये लीजिए छोले आपके लिए। ये कप आपका यहाँ आएगा, ये आपके छोले आ गए। एक हरी मिर्च आपके लिए डाल देता हूँ मैं, आप खा लीजिए इसको। एंड देयर इज दिस ब्यूटीफुल केक विच आई वांट यू टू टेस्ट। इट्स एन ऑरेंज केक, इट्स डिफरेंट। दिस इज द क्रिसमस डेलिकेसी, इट्स meant only for Christmas. You can fill it with honey or cream or whatever it is and taste it with the tea. So this is your plate. This is my मेहमान। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि हमारा खानदान कुछ we are mixture of Punjabis and Muslims. My father's name is Sardar Malik. My mom is Bilkis Malik. मेरी मामा का नाम हसरत जयपुरी, बहुत फेमस पोइट थे। जाने कहाँ गए वो दिन, जिंदगी एक सफ़र ऐसा, बहुत सारे 25,000 से गाने लिखे। तो हर फैमिली इज, माई वाइफ इज़ अ पंजाबन एंड आई हैव अ मुस्लिम हेरिडेंट ऑल्सो। सो हमारे टेबल पे खाने वाने का बड़ा जोर रहता है। अच्छा। खाना पीना बहुत रहता है, और खाना पीना, मक्खन, दूध, ये वो, these are normal food stuff that is there in the house. वाकई ये मेहमान नवाजी शायद मैंने पहले But this कभी is नहीं a देखी। small tea party. इसमें actually है कुछ नहीं. This is a very small tea party. A tea party is actually very more extravagant. But this is enjoyable. Of course, हाँ, I and mean, yeah. it's enough for all of us and we'll have a good time. Of course. फिर शुरू करते हैं। चलो। वेल, थैंक यू सो मच अबू जी। It's been a great pleasure. बहुत अच्छे से आपने इतने प्यार से इतनी सारी चीज़ें बनाई आपने, इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की, ना सिर्फ मेरी, ऑफ कोर्स मेरी क्रू मेंबर्स की भी। सो दिस इज लाइक अ स्मॉल टोकन ऑफ लव फॉर Wow. यू। Thank you so much. इट Thank you. इज फ्रॉम क्यूटिस। Thank you, Cutis, for all this. I'm sure these are very good products and we'll be using them in the house and we'll buy them also in future. Thank you so much. Very obliged. So that's it. थैंक यू सो मच अबू। Thank you very much. Bye-bye.